کہ اگر غوث اعظم کو کوئی مدد کے لیے اس پرسارا کی سرزمین سے پکارے تو میرے غوث اعظم اس کی مدد فرمائے گا. وہ غوث اعظم ہیں. مگر جب سمجھایا جاتا ہے باجا بند، بابڑے سے شادی بند، تو پھر یہ امام لوگوں پر بات آتی ہے کہ امام لوگ اپنی گھر کی بات بولتے ہیں. ہمارے باپ دادا کی کتاب میں نہیں لکھا ہے، اللہ کے قرآن میں لکھا ہے جو محبوب کا نہیں وہ میرا نہیں، جو محبوب کا ہے وہ میرا ہے. قرآن کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کی کتاب نہیں کہتی. یہ قرآن کہتا ہے. قرآن حق دیکھو، حق کو سنو اور حق کو پہچانو اور حق پر چلو. سارے معاملات ہمیشہ امام لوگ کہتے ہیں ہم باجے کا نکاح نہیں پڑھائیں گے اور وہابڑے کا نکاح نہیں پڑھائیں گے. تو حضرت پڑھانا پڑے گا نہیں تو چھٹی. ایسے بھی معاملات ہے لوگوں کیا ہے چھٹی. الحمدللہ یہ تو اللہ رسول کی کروڑہ قسم، جو سچا ہوتا ہے اور جو حق پر ہوتا ہے یقیناً وہ حق ہوا کرتا ہے. باطل مٹنے والا ہے اور حق سچ ہونے والا ہے. یہ خیال کرنا، تم جب مر جاؤ گے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ ہمیں سمجھانے والے سمجھاتے تھے. تم کہو گے مولا سے مولا پھر مجھے دنیا دے، پھر میں غوث اعظم کی جو عملی زندگی تھی اس پر عمل کروں گا. تب کچھ ہونے والا. غریب نواز جو فرماتے تھے اس پر میں عمل کروں گا. میرے غریب نواز فرماتے ہیں جس نے اگر چہرے سے داڑھی کو اگر کیا کہتے ہیں ریزر چلایا، وہ وسطرا چلایا تو اس نے کچھ اپنے گال پر چلاتا ہے، مگر غریب نواز فرماتے ہیں کہ وہ میرے کلیجے پر چلاتا ہے. اللہ. آج نوجوان اپنی فیشن کو ایسا فیشن پرو بنا رہے. اللہ اکبر. مگر جب فصلیہ ایک طرف ہوگی، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر ہو جائے گا، تب سمجھ میں آئے گا. یہ مطلع سماعت کر لیں. میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ وہاں بھی سے نہ دوستی، نہ کھانا، نہ پینا، نہ چائے، نہ ناشتہ، نہ کچھ بھی نہیں. تو رشتہ داری کب بابا؟ نکاح داری کب؟ نکاح ہوگا ہی نہیں. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. سبحان اللہ. نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان مال ان پر فدا کر دے. یعنی ماں بھی، باپ بھی اور مال بھی ان پر قربان کر دے. اس پر نبی پر جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی بھائی بہن، اپنی بیوی سے زیادہ اگر رسول سے محبت نہ کرے تو مومن نہیں ہے. بے شک کیا ہے وہ مومن نہیں ہے. پھر نکاح کی بات آئی تو مسجد کے امام سے زیادہ اور رسول اللہ سے زیادہ اپنی برادری، اپنی نکاح والوں کی لگ جایا کرتی ہے. ایسا معاملہ ہے. کچھ لوگ ایسے جو ہے معاشرے کے حالات ایسے چل رہے ہیں. حضرات باجا داری بند کرو، خرافاتوں سے دور رہو اور باطل جو ہیں، جو گمراہ کام ہیں ان سے بچو. اب بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر وہ اس طریقے سے ہو جائے گا، پھر یہ ایسا ہو جائے گا، وہ پھر میرے یہاں نہیں آئے گا. دادا مرنے سے زیادہ تم ایمان اس زندے پر رکھتے ہو. اللہ اکبر. مرنا کیا ہے؟ برحق ہے. مرنا حق ہے. آج تمہاری باری ہے، کل ہماری باری ہے، یا آج ہماری باری ہے کل تمہاری باری ہے. ایسا ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے. کئی جنازوں کو ہم قبرستان چھوڑ کر آئے ہیں اور کئی ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہم میں سے کتنے الجھ جائیں گے ہم کو پتا نہیں چلے گا. تو ابھی توبہ کرو. کیا ہے؟ جس جگہ، جس زمین پر بیٹھے ہوں. سرکار بغداد فرماتے ہیں، سرکار بغداد فرماتے ہیں سوچے دل میں. سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، وہ کہنے لگا کہ میں توبہ کرنے کی سوچ رہا ہوں کہ توبہ کر لوں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اپنی انگشتوں کو یعنی اپنی انگلیوں کو بغیر ہلائے ابھی توبہ کر لیں. کیا ہے؟
अभी तौबा कर ले, वरना उंगलियां हिलने से पहले इजराइल अपनी रूह को लेकर परवाज ना हो जाए, यानी तौबा की मोहलत ना मिल सके। हजरात इतना जल्द है तौबा, जितनी जल्द हो सके, जितनी जो है तैयारी के साथ हो सके उतनी तैयारी कर लो। क्या है मरने की जितनी तैयारी तुमसे हो सकती है, तो तैयारी क्या है? सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि तैयारी वो है कि मोमीन जो है अपने लिबास को साफ रखे। सुभान अल्लाह। मोमीन जो है पाक हो जाए। पाक ही क्या है? हदीस पाक में आया कि पाक रहना आधा ईमान है। क्या है? पाकी आधा ईमान है। अगर तुम नापाक जमीन पर फिरोगे, अगर तुम अपनी जिंदगी में अगर तुम जमीन पर नापाक की हालत में चलोगे, अल्लाहु अकबर, जितने कदम चलोगे उतने कदम तुम्हारे जो है नामाए अमाल में गुनाह लिखे जाएंगे। और अगर पाक रहोगे, इरादा होगा जोहर पढ़ूंगा, इरादा होगा सरकार की बारगाह में जाऊंगा, सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी दूंगा, इरादा होना होगा। उससे पहले अगर तुम्हारी रूह परवाज हो गई, अल्लाह ताला तुम्हारे नामाए आमाल में गुनाह जो हैं, जो तुम्हारे जो पिछले गुनाह हुए हैं, अल्लाह उसको नहीं देखेगा, महबूब की बारगाह के कदम चूमेगा। सुभान अल्लाह। जो है महबूब की बारगाह में कितने कदम चल रहा था। फरिश्ते अगर कहेंगे भी कि मौला ये तो बड़ा गुनाहगार है, बड़ा पलीद है, ये जिना करके लौट रहा था, ये जो है क्या कहते हैं नापाक था, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह उनसे कहेगा ये नापाकी के साथ ये पाकी होने जा रहा था, नापाकी से पाकी होकर इसका इरादा ये था कि मैं तौबा कर लूं और अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर माफी तलब कर लूं। सरकार बगदाद इरशाद फरमाते हैं कि जो वली की बारगाह में अगर आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जो है गुनाह सगाइर हो कबाइर हो, अल्लाह ताला माफ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इतने बड़े फजाइल है। तो बहुत से ऐसी बातें हैं कि लोग जो है समझ नहीं पाते, और लोग नहीं समझ रहे हैं कि हम समझे क्या, हम करेगा। मैं अपने असल मौजू पर आऊं। मैंने कुरान पाक की मुकद्दस आयत तिलावत की है पहले पारे की, वो जो मैं बोल रहा था ये उसका निचोड़ यही है, उलाइक वल्लदीना आमनू व आमिलुस सालिहाती उलाइका असहाबुल जन्नती हुम फिहा खालिदून। अल्लाह ताला फरमाता है जिसने नेकियां की, यानी जिसने अच्छाइयां की, अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जो है जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाएगा, और जिसने बुराइयां की हैं उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब होगा। क्या है? वो बड़े अजाब के मुस्तहिक हैं, वो बड़े गुनाहगार हैं। अल्लाह अकबर। आओ, जन्नत चाहते हो या जहन्नम चाहते हो, अपनी कब्र को जो है जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी तब्दील करना चाहते हो, या अपनी कब्र को जो है तुम जहन्नम की एक क्यारी तब्दील करना चाहते हो, फैसला आप लोगों के हाथ में है। अल्लाह तो फरमाता है अगर तुम हक पर रहोगे, अगर तुम नेकियां करोगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, अगर तुम बुरे अमाल करोगे तो तुम्हें जन्नत दी जाएगी, जहन्नम दी जाएगी। अल्लाह अकबर। इस्लाम के शहजादों, इस्लाम के चाहने वालों, गौसे आजम के मानने वालों, गौसे आजम की नाम पर इस महफिल गौसियत को तुमने सजाया है, इस महफिल पाक को अगर तुमने सजाया है तो आओ गौसे आजम की शान देखते हैं, गौसे आजम की जो है विलायत देखते हैं, गौसे आजम की जो है पावर देखते हैं। अल्लाह अकबर। गौसे आजम वो गौसे आजम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें वो मकाम ऐसे नहीं अता फरमाया। अगर उनकी तारीख को पढ़ोगे तो माँ के पेट में 15 से 2 रिवायत 3 रिवायतें मौजूद हैं। 15 पारे अपनी माँ की सिकम में याद कर लिए थे, कोई कहता 18 पारे याद कर लिए थे। अल्लाह अकबर। माँ की सिकम में अपने घर पर सलाम करने वालों को पहचानते हैं। अल्लाह ताला ने इतना पावर अता किया था, फिर भी उन्होंने दुनिया में आकर इल्म हिकमत के जो है अलम उठाए हैं, इल्म सीखने के लिए दूरों दराज का सफर किया है, दीन सीखने के लिए उन्होंने दुनिया को ये जो है बताया है और ऐलान किया है कि आओ दीन सीखना है, तुम जो है तुम्हें अपना मुल्क छोड़ना होगा, इल्म सीखना है, तुम्हें अपना घर छोड़ना होगा, अल्लाह को
पहचानना है, अल्लाह के रसूल के दिन को अगर जिंदा करना है तो तुम्हें जो है हक को समझना पड़ेगा। वो गौसे आजम है जो अपनी माँ की बारगाह से निकलकर उस्ताद गिरामी की बारगाह में जाते हैं, वो गौसे आजम है। अल्लाह अकबर। जब गौसे आजम के कोई ये मकाम मर्तबियत को पर फाइज हुए हैं, गौसे आजम की जो है ये अल्लाह ताला ने जब इतना बुलंद मकाम अता किया है तो रब्बे कदीर की बारगाह में रब को कैसे खुश करना है, रब को कैसे राजी करना है। अल्लाह अकबर। रब को राजी करने में लगे रहते थे। आज हमारा मुआशरा क्या है, आज हमारा जो है हमारी जिंदगी जो है हम कैसी गुजार रहे हैं, हमारी जो है आज हमारा खाना जो है हम कैसे खा रहे हैं, आज हमारा पीना जो है वो कैसे चल रहा है। अल्लाह अकबर। हम पानी नहीं देखते हैं कि किसी, आज हम पानी नहीं देख पाते हैं, हम खाना नहीं देख पाते हैं, हमने कैसी कमाइयों में से लाया है। मैं अपनी असल एक दो मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद हजरत मौलाना कारी नदीम साहब किबला आपको जो है अपनी तकरीर से जो है आपकी दिलों को मुनव्वर करेंगे। आप हजरात अगर जो है हलाल खाएंगे, अगर हलाल पिएंगे, अगर आप हजरात जो है आप कहते हो हम कोशिशें करते हैं कि हम गौसे आजम की जो है जिंदगी पर अमल करें, गरीब नवाज की जिंदगी पर अमल करें, उसके पहले हमें देखना होगा हमारा घर कैसे चल रहा है, हम खा रहे क्या हैं, हम पी रहे क्या हैं, हमारे पास आने वाला रुपया कहाँ से है, शराब से है, गांजा से है, कैसी कमाइयों में से रुपया निकल रहा है, क्या किसी का हक छीना है, क्या किसी यतीम को जो है हमने परेशान किया है, या हमें नमाज की हिदायत क्यों नहीं होती, हम गौसे आजम की जिंदगी पर हम अपनी नजरें गवाते हैं, हम गरीब नवाज की जिंदगी पर हमारी निगाहें जो है डालते हैं, मगर वो अमली जिंदगी क्यों नहीं बन पा रही है, हम नमाज के कायल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हम नमाजों की जो है शुरुआत क्यों नहीं कर सकते हैं। हम तो गरीब नवाज की जो है छठी मना रहे हैं, हम गौसे आजम की 11वीं पर नजर डाल रहे हैं, सारे मुस्तहब काम हमसे हो पा रहे हैं, हम इतनी महफिल जमा करके यहाँ बैठ गए हैं, इशा में यहाँ से जितने लोग हैं मैं तो कहता हूँ इसमें से चंद फीसद लोग इशा की नमाज के लिए मस्जिद में हो गए, प्रोग्राम के लिए उससे जायद लोग हैं, फिर नमाज के लिए क्यों नहीं। क्या नमाज से बढ़कर सवाब यहाँ होगा, क्या नमाज से बढ़कर नेकियां यहाँ मिलेगी। ऐ दोस्तों सुनो, नमाज जो है एक फर्ज अदा जो है कज़ा करने का हुक्म तुम जानते हो, एक फर्ज कज़ा करने का हुक्म। अल्लाह अकबर। एक फर्ज कज़ा कर जो इंसान कज़ा करता है अल्लाह ताला उसको 80 साल तक जहन्नम की आग में जलाएगा। क्या तुम ये सहन कर सकते हो। तुम जब जितनी मोहब्बत गौसे आजम से करते हो तो अमल गौसे आजम ने किया है वो अमल तुम भी शुरू कर दो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारी घरों में बरकतों का नुज़ूल अता फरमाएगा। अगर तुम अब जो अमल गौसे आजम ने किया है और मर्तबा पाया है, तुम गौसे आजम नहीं बन सकते हो, मगर तुम गौसे आजम के गुलाम नहीं बन सकते हो, तुम गरीब नवाज नहीं बन सकते हो, मगर गरीब नवाज के गुलाम नहीं बन सकते हो। इस्लाम के शहजादों अपनी जिंदगी को संवारो, खाना सही खाओ, खाना जो है हलाल का खाओ, पानी जो है हलाल का पियो, रुपया जो है हलाल का कमाओ। देखो फिर इंशाअल्लाह ताला इनकलाब पैदा होगा, दीन जिंदा होगा, औलिया कामिलीन की जो है जिंदगियों पर हमें अमल की तौफीक होगी। तौफीक तलब कर रहे हो, तौफीक कहाँ से होगी। अपनी जिंदगी को संवारो, शराब नोशी से दूर रहो, अपनी बेटी की शादी हो तो इरादा करो अल्लाह ताला जब मेरी बेटी का रिश्ता होगा मैं रसूल पाक के नाम पर महफिल को सजाऊंगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि सुन्नते मुस्तफा है, निकाह मिन सुन्नती फमन रगीबान सुन्नती, ये किसी और की सुन्नत नहीं है। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी की सुन्नत है, उसमें हमारे काम क्या हो रहे हैं। अरे कोई नौजवान पी लेता है, कोई शराब पीता है, तो कोई क्या ऐसे पीने वाले बहुत से आइटम बन चुके हैं जिसको लोग यूज कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं, पीकर उस महफिल में दूल्हे के आगे पीछे बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। वो पाक महफिल है, वो ऐसी पाक महफिल है अल्लाह अकबर, उसमें रहमत के 70 हजार फरिश्ते उतरा करते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसी पाक महफिल में तुम जो है
गुमराह वाले काम कर रहे हो। निकाह जब हो, निकाह उसी को कहते हैं जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो। सुभान अल्लाह। जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, संदल निकालते हैं, उर्स रखते हैं और उसमें कहते हैं हम जो है अल्लाह के वलियों की जो है संदल शरीफ निकाल रहे हैं और उसमें जब बाजे गाजे के साथ नहाते हैं। खाक बरकतें होगी, खाक गाँव से जो है तुम्हारी नुहसतें भागेगी, बल्कि तुम नुहसतों को और जो सरंजाम देने वाले जो 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 गुमराह और बददीन हैं उन कामों को तुम अल्लाह की वलियों के नाम पर जो है लाते हो और उनके नाम पर धब्बा लगाते हो। इस्लाम के शहजादों, अगर वली का जुलूस व उर्स हो तो जुलूस मुहम्मदी निकाला जाए, उनके नाम की मनकबतें गाई जाए। उसी कहते हैं मोहब्बत औलिया, उसे कहते हैं मोहब्बत जो है वली की। मोहब्बत वो नहीं, वो तो तुम्हारा जो है जो तुम्हारा डांस और तुम्हारा जो गुमराह काम, वो तो तुम्हारे जो तुम अपनी फैशन और अपने का जो है हम कैसे नाचते हैं, हम कैसे जो है अपनी जिंदगी को अपनी जवानी को दिखाते हैं, उसके लिए तुम इस रुपये को खर्चा करते हैं। कसम अल्लाह की, उसी रुपये को अल्लाह और उसके रसूल के खातिर का जो है तुम उसको खर्च करो। अल्लाह ताला उस अगर तुमने 30,000 रुपया जमा किया है, तुम्हें उसे 2.5% अल्लाह ताला अदा करने की कोशिश, अल्लाह ताला तुम्हें जो है लोगों से जो वो पैसा मिलता है उसमें बरकत अता फरमाएगा। तुम कोशिशें करो कि हम दीन के खातिर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। अगर मैं तुमसे ये नहीं कहता, तुमसे मैं ये जो है वादा नहीं लेता कि तुम नमाज जो है 5 वक्त तुम मस्जिद को संभाल कर रखो, मस्जिद के जो है तुम सिपहसालार बन जाओ, ये नहीं कहता, मगर तुम जो है अपना फीसद वक्त जो नाच गानों में गुजार रहे हो, अपना फालतू टाइम तुम इधर उधर दे रहे हो, उससे बेहतर ये है कि 4 रकात जो है फजर जोहर की हम अदा कर ले। अल्लाह ताला 80 साल के गुनाह माफ फरमाएगा और तुम्हारे नामाल में जो है 80 साल की नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इस्लाम के शहजादों, नमाज जो है अफजलुल इबादत है, नमाज सबसे बड़ा अमल है। जो आज प्रोग्राम गौसे आजम के नाम पर किया है, ये एक जो है दर्जा आला है, एक जो है गौसे आजम की मोहब्बत का एक तकाजा है। इस मोहब्बत के अंदर इतना बड़ा जो है सवाब, इतनी बड़ी जो है नेकियां। तो इस्लाम के शहजादों सुनो, जब जो अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब को हासिल करने की कोशिश करेगा तो इस्लाम के शहजादों कितना जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे कैसा राजी हो जाएगा। और रिवायतों में आता है जब रब जिससे राजी हो जाता है तो कोई वली बनता है, अल्लाह बनता नजर आता है, तो जब कोई गौसे आजम बनता नजर आता है तो कोई गरीब नवाज बनता नजर आता है, अल्लाह के वली बनते नजर आते हैं जब जो अल्लाह के जो है कुर्ब को हासिल करता है। मैं एक हदीस पाक बयान कर दूं, उसके बाद में रुखसत हो जाऊंगा। इस्लाम के शहजादों, जब रूहुल जिब्राइल हमें जब मलकुल मौत अपनी इंसान की जब रूह को खींचने के लिए आती है, इंसान की जो है रूह को कब्ज करने के लिए आती है, अल्लाह अकबर, तो हजरत उबैदा बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, वो फरमाते हैं, वो रावी हैं, हजरत उबैदा बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने पढ़ा, वो रावी हैं, वो अर्ज करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में एक मर्तबा मलकुल मौत तशरीफ लाए और लाने के बाद में जो असलन जो उनकी जो कॉपी जो उनकी जो तस्वीर थी उसी हालात में जैसे उनके जो जब नूरानी शक्ल सूरत के अंदर जाहिर हो गए और पूछा, हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, आप कौन है शख्स, आप कौन हैं? फरमाने लगे, कहा मैं अल्लाह का मुकद्दस फरिश्ता हूँ, मैं इजराइल हूँ, मैं मलकुल मौत हूँ। फरमाया, कहा आप मलकुल मौत हो? कहा हाँ मैं। फरमाने लगे, पैगंबर ऐ नबी मैं मलकुल मौत हूँ। वो अर्ज करने लगे, हजरत मलकुल मौत कहने लगे कि मैं एक फरिश्ता हूँ जो लोगों की रूह को खींचा करता हूँ। अल्लाह अकबर। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम से फरमाया तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि आप इतने नूरानी सूरत शक्ल सूरत में जाहिर हुए हैं। कहा? फरमाने लगे, हाँ या पैगंबर, हाँ मैं एक फरिश्ता हूँ, मलकुल मौत हूँ, मैं हाजिर आया
हूँ। मैं जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम ने फरमाया, कहा तुम किसी की जो है रूह को कब्ज करने आते हो, क्या यही शक्ल सूरत में आते हो, क्या ऐसे ही जाहिर हो जाया करते हो? कहा हाँ। फरमाया मैं ऐसी शक्ल सूरत में आता हूँ। तो कहा फरमाया हाँ, जब आप ऐसी शक्ल सूरत में आते हैं तो कैसे जो है गुनहगार के लिए जो है आप कैसी शक्ल सूरत में आते हैं, और नेककारों के लिए आप कैसी शक्ल सूरत में आते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इजराइल मलकुल मौत ने फरमाया कि आप थोड़ा सा चेहरा मोड़ लीजिए, आप अपनी आंखें बंद करके चेहरा नीचे कर लीजिए। पैगंबर इस्लाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत ने फरमाया आप अपने चेहरे को नीचा जो है नीचे कर लीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत जो है मलकुल मौत जब हजरत इब्राहिम से कहते हैं कि अब चेहरा मेरे तरफ मोड़ लीजिए, अल्लाह अकबर। क्या देखते हैं कि जब मलकुल मौत का जब चेहरा देखना था, अल्लाह अकबर, जो आंखों की जो हमें आंखों की जो भौवें कहते हैं, इसके ऊपर भी वो जो बाल जो है तीर की कमान की तरह जो जाहिर हुए थे, तलवार की तरह जिस्म के बाल जो है तीर कमान की तरह जाहिर हो गए, और पीठ से भी जो है तीर कमान की तरह बाल निकल रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम कहते हैं कहा आप जो आपकी पहले वाली सूरत थी उसी में आ जाइए। हजरत मलकुल मौत कहते हैं कहा ए पैगंबर, जो नेक होता है मैं ऐसी सूरत में उसके लिए आता हूँ, और जो गुनाहगार होता है उसके लिए रब्बुल इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे ऐसी शक्ल सूरत इख्तियार करके भेजता है। अल्लाह अकबर। तो उसके मलकुल मौत के जो जिस्म के जो बाल हैं, अल्लाह अकबर, जो बाल होते हैं वो एक तीर कमान की तरह टाइट हो जाते हैं, और उसी से कहा जाता है, रिवायत में आता है कि जिब्राइल मलकुल मौत जो है अपनी जब रूह खींचती हैं, अल्लाह अकबर, बहुत से लोग कहते हैं कि उसे जो है क्या कहते हैं सकरात लगा है, जो है रूह 3 दिन से भूखा है, प्यासा, पानी पे पानी डाल रहे हैं, जो खराटे लेता है, खर करता है, और फिर कोई गर होता रहता है, पानी डालते हैं, पानी रिटर्न वापस आता है। ऐ इस्लाम के शहजादों, इसमें ना मुस्कुराने की जरूरत है ना हंसने की जरूरत है, बल्कि अफसोस की बात है कि जो गुनाहगार चले गए हैं उनका कब्र में क्या हाल हो रहा होगा। अल्लाह अकबर। अपनी जिंदगी की जो जितने वक्त नमीज बाकी है उसी में अपनी जिंदगी को सवारें, और उन मरे हुए लोगों के लिए इसाले सवाब करें। अल्लाह से अर्ज करें कि तेरे गोश्त के सदके में अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तेरे गरीब नवाज के सदके में उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तेरे हबीब के सदके में उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस्लाम के शहजादों, हजरत जिब्राइल रूह खींचते हैं, फिर गले तक लाते हैं। अल्लाह अकबर। वो नाक से जो हुआ करती है रूह को, जो जब सबसे पहले हिस्सा जो है ये नाक का है, जब अंगूठे से जब रूह निकाली जाती है, अल्लाह अकबर, यहाँ से तो यहाँ आ जाती है, मगर जो रूह के जो है निकलने की जो हरकतें होती हैं उससे हर एक का बदला लिया जाता है, हर एक नमीज का बदला उस वक्त में होता है। तुम अगर गला भी दबाओगे तो नहीं मरने वाला, तुम अगर जो है तकिए से उसका मुंह भी दबा कर मार डालोगे उसका तो मरने वाला था, मगर तुमने उसे डबल तुम्हारे नामाए अमाल में जो है गुनाह पे गुनाह जो है डाल लिए हैं। इस्लाम के शहजादों, बहुत कोशिश करते लोग, अब कब हो जाए तो अच्छा होगा। 3 दिन हो गए हम जागी हैं, सोए नहीं है, क्या है 3 दिन हो गए, अब मर जाए, इतना तुम सोचते हो, अब मर जाए तो अच्छा होगा। कोई जवान बेटे को कहो कि ये भी मर जाए, कहते नहीं कहते। अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया है उसी मुकर्ररा वक्त के अंदर तुम्हारी रूह कब्ज होगी, ना एक सेकंड इधर होगा ना उधर होगा। जो वक्त मुकर्ररा है उसी मुकर्ररा वक्त पर तुम्हें कब्रिस्तान में डाला जाएगा, फिर तुम्हारी जो है वक्त को देखा जाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मार गया।